थैंक यू। जाता है रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, सही है। और रिसर्च रीजन होगी बायोमैकेनिकल स्टडीज कोरिलेट क्लिनिकल टेस्ट विद इमेजिंग फाइंडिंग जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं पेशेंट में, ये साइंस एंड सिम्टम्स है, लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, हम उसको इमेजिंग पे उसके साथ कोरिलेट करते हैं टू डायग्नोज और टू ट्रीट अ डिजीज। लुक एट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ इमेजिंग टूल्स। Imaging modalities, as we have read earlier, ionizing modalities जो ionizing radiation utilize करेंगे इसमें आपके radiography, that is X-ray, CT scan और CAT scan is the same thing, isotope, bone scan, fluoroscopy हम अपने next lecture में discuss करेंगे। Non-ionizing modalities में हमारे पास magnetic resonance imaging थी और ultrasound था, और ultrasound से ही ultrasound Dopplers होता है, और Dopplers में हम blood flow देखते हैं। So today we are going to talk about radiography के basically इसमें radiation कैसे produce हो रही है उसकी, how an X-ray machine actually works. Basic concepts: what is an X-ray? Electromagnetic radiation of short wavelength. एक overview है इस machine का कि इसमें एक lead case होता है, right? और उस lead case के अंदर एक oil bath होगा that acts as an insulator. This is the cathode, this is anode. ठीक है, कैथोड से आपकी इलेक्ट्रॉन एमिशन होती है और इसका टारगेट होता है एनोड, और कैथोड और एनोड के दरमियान में वैक्यूम होता है, और यहाँ से जब एनोड पे इलेक्ट्रॉन टारगेट करते हैं, हिट करते हैं, तो वहाँ से एक्स-रे बीम निकलती है। इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। An X-ray machine is essentially a camera. Instead of visible light, it uses X-rays to expose the film. And they're like light in that they are electromagnetic waves, but they are more energetic, so they can penetrate many materials to varying degrees. Like bone जो है वो उसको कितनी absorb करेगी, fat कितना absorb करेगा, और tissues कितना absorb करेंगे, हम आगे देखते हैं। और हमने पहले भी पढ़ा था कि रेडियो डेंसिटी जो होती है वो इसी पे बेस कर रही होती है, जो जितना ज़्यादा डेंस होता है वो कितना उसको एक्सरे को एब्जॉर्ब कर रहा है। When the X-rays hit the film, they expose it just as light would. Since bone, fat, muscle, tumor, and other masses all absorb X-rays at different levels, the image on the film that you see different structure inside the body. कोई आपको white नजर आता है, कोई light grey to dark grey होता है, कोई black होती है, like air होती है उसमें। So this is how you can actually distinguishing the different structures in the body. Professor Roentgen discovered accidentally in 1895, experimenting with a machine that, unknown to him, was producing X-rays, saw the bones of his own hands in the shadow cast on a piece of cardboard in his lab, और उसको इस तरह से अपीयर हुआ था। और अब जो है today's image improve हो चुका है इसके distal lenses हैं, metatarsals हैं, wrist bones हैं। This is something he is wearing in his ring finger, जो कि आपको foreign object आपको whitish नजर आ रहा होता है। So radio density. There are two types of materials. एक होते हैं radio opaque और एक होता है radio lucid. So radio opaque वो होते हैं when an object absorbs the X-rays, fewer photons are produced, क्योंकि वो X-rays तो absorb होंगी, जो थोड़ी बहुत रह जाएंगी वो जाके photons फिल्म को hit करेंगे और फिल्म आपकी light ही रहेगी because of the fewer photons. उसमें आपके पास lead है, बेरियम सल्फेट है, बोन है, ये आपको whitish appearance देंगे on X-ray. और as you move forward, muscle, blood और solid organ like liver, ये आपको light grey नजर आ रहे हैं क्योंकि they are ranging between radiopaque and radiolucent materials. Radiolucent क्या होते हैं? X-rays are not absorbed. Screen produces photons when struck and exposes the film, turning it dark. क्योंकि वो absorb ही नहीं हो रहे, तो directly जब वो film के ऊपर hit करेंगे photons, तो वो black appear होता है। So here is an example, butter, fat आपको dark grey नजर आती है और air बिल्कुल black होती है, उसमें कोई absorb नहीं करती।
So these are radiolucent materials. Next is principal component of X-ray tube, source of electron, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आने हैं और उन्होंने एक टारगेट पे जाके हिट करना है, और एक इवैक्यूएटेड एनवेलप होगा जिसमें वैक्यूम क्रिएटेड होगा, नो एयर, और एक हाई वोल्टेज सोर्स होगी, करंट होगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको एक सिंपल सी फिगर पहले मैं दिखाऊंगी to make you understand how an X-ray machine is working. Okay, let's consider it an X-ray machine. इसमें ये cathode है, cathode is negatively charged and this is anode that is positively charged. और इस सारे को एक glass encasing में ये enclosed है, like जैसे हमने कहा था lead है, और इसके अंदर सारी लाइनिंग होती है ऑयल की, that is acting as an insulator, और इसके अंदर सारा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, नो एयर। अब जो कैथोड है, कैथोड के पार्ट्स में आपके पास एक कंकेव सरफेस होती है जिसको हम कहते हैं कंकेव फोकसिंग, and these are two long stiff wires that are attached with the filament coil. ये कैथोड जो है that is all made up of tungsten, इसकी जो coil है वो भी टंगस्टन की बनी है, पूरा कैथोड टंगस्टन का बना हुआ होता है। And why are you using tungsten here? Because tungsten has high atomic number, 74 होता है, और atomic number ज़्यादा होने की वजह से rate of formation of X-ray photon ज़्यादा होगी। Secondly, इसका melting point ज़्यादा होगा, 3400 डिग्री C होता है, increased thermal conduction होती है इसकी, और decreased vapor pressure। decreased vapor pressure से vacuum maintain होता है। That's why टंगस्टन इज प्रेफर्ड। कैथोड और एनोड दोनों ही टंगस्टन के बने हुए होते हैं। ठीक है, सो होगा क्या कि इलेक्ट्रिसिटी विल पास थ्रू दीज स्टिफ वायर्स। ठीक है, पीछे से जब आपने सोर्स दिया, उसको हाई वोल्टेज करंट ऑन किया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी एंड इट पास ऑन टू दिस टंगस्टन फिलामेंट कॉइल एंड इट हीट्स अप। As it heats up, it emits electrons. These are the emitting electrons. तो जहाँ के टारगेट किस पे होते हैं, there is a focal spot on the anode. ठीक है, और this focal spot is also made up of tungsten, जो usually आपका 1 to 3 millimeter in diameter होता है, but it is angulated at an angle of 20 degree. So this is a focal spot on an anode जिस पे सारे electrons आके target करेंगे। ठीक है, और ये फोकल स्पॉट होता है आपका 3 मिलीमीटर इन डायमीटर, लेकिन एक एंगल की फॉर्म में होता है एट 20 डिग्री, जिसकी वजह से अपेरेंटली ये 1 मिलीमीटर डायमीटर का अपीयर होता है। और इसका फायदा क्या होता है कि आपको शार्प इमेज मिलता है इसकी वजह से। और फिर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट डिसिपेशन होनी होती है वाया दिस कॉपर स्टेम, इट डिसिपेट्स द हीट, और एक्सरे बीम प्रोड्यूस होगी, एक्सरे फोटॉन्स रिलीज होंगे। और जो कॉपर स्टेम है, स्टेम हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट डिसिपेट्स द हीट। जितना ज्यादा इन इमिटेड इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर होगा, ठीक है, greater the temperature, greater is the number of the emitted electrons. ओके, और एक और चीज इसमें ये है कि ये जो वैक्यूम है ये क्यों क्रिएट किया हुआ है हमने। दिस वैक्यूम इज क्रिएटेड सो दैट जो emitting electrons हैं they do not collide with the air molecules और air particles, because अगर वो collide करेंगे collision से इनकी speed भी कम हो जाएगी and decrease energy X-ray photons will be released. तो फोटॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होने थे, इनकी एनर्जी कम होगी। और सेकेंडली ये भी हो सकता है कि एयर कैन कॉज द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस फिलामेंट। ये जो फिलामेंट पड़ी हुई है आपके पास, ये टंगस्टन फिलामेंट होती है जिसका डायमीटर 2 मिलीमीटर होता है और डेप्थ इज लेस देन 1 सेंटीमीटर। सो बेसिकली इसमें जो एक पूरा प्रोसीजर था वो क्या था कि दिस इज अ कैथोड एंड एनोड, बोथ आर मेड अप ऑफ टंगस्टन। ठीक है, हाई एटॉमिक नंबर होता है, हम टंगस्टन को प्रेफर करते हैं। वो भी इलेक्ट्रिकल सोर्स हमारी होगी, उसमें करंट पास करेगा थ्रू दीज वायर्स, और वायर से इन टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर जाएगा। यहाँ पे
हीट प्रोड्यूस होती है, और जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा आपके इमिटिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और ये इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स वैक्यूम से पास करेंगे और जाके किस पर टारगेट करेंगे, द फोकल स्पॉट दैट इज प्रेजेंट ऑन एनोड। और जो एनोड होता है ये स्टेशनरी भी हो सकता है और रोटेटिंग भी हो सकता है। यहाँ जो मैंने दिखाया हुआ दैट इज स्टेशनरी एनोड। जो रोटेटिंग एनोड होगा वो तब होगा जब हमें हाई डोजेज ऑफ एक्सरे फोटॉन्स रिक्वायर होती है फॉर दी डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक यूज। हम देखेंगे कि उसमें ज़्यादा किस्में होती हैं और सीटी स्कैन वगैरह में। So that was a basic principle of a X-ray machine. Now getting back to the slides. अच्छा, अब जो मॉडर्न वो है, ये तो मैंने खुद से डायग्राम बना के बताया था। इसमें क्या होते हैं इसके पार्ट्स? सो इसमें क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने कैथोड दिखाया हुआ है, इसके साथ एक फिलामेंट है, ठीक है, विच इज फिलामेंट इन फोकसिंग का वही जो एक टंगस्टन फिलामेंट थी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए और ये आपका पूरा एनोड है। एनोड पे ये टंगस्टन और रीनियम एनोड डिस्क बनाई हुई है इन्होंने, जैसे मैंने आपको फोकल स्पॉट बताया था, तो ये वही है। उसके साथ एक एनोड स्टेम है और रोटर है। रोटर जो होता है वो एक रोटेटिंग एनोड होता है, इट रोटेट्स। और इसके साथ एक स्टार्टर लगा होता है। स्टार्टर इज अ मोटर जो इसको टर्न कराती है, मूव करवाती है, ठीक है। तो होगा क्या, इधर से आपने इलेक्ट्रिसिटी दी तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, सॉरी, हाँ, यहाँ से आपने इसको जब आप ऑन करेंगे तो कैथोड से सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एनोड के टंगस्टन एनोड डिस्क है वहां पे जाके टारगेट करेंगे, और टारगेट करके फिर एक पोर्ट होता है जहां से एक्सरे बीम निकल जाती है। जैसे उस पिक्चर में था, वो पिक्चर थोड़ी ऑपोजिट थी, उसमें कैथोड मैंने उस साइड पे बनाया हुआ था। Okay, X-rays are produced when high velocity electrons are decelerated. During interaction, की acceleration कम हो जाती है during interaction with the high atomic number material such as tungsten target in the X-ray tube. तो टंगस्टन टारगेट वही था जो आपके एनोड पे था, कैथोड से आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए और एनोड के टंगस्टन टारगेट पे, डिस्क पे, फोकल स्पॉट पे जाकर उन्हें हिट किया, उनकी स्पीड कम हुई और एक्सरे फोटॉन जो है वो प्रोड्यूस हुए और रिलीज हो गए। An electrically heated filament within the X-ray tube generates electrons that are then accelerated from the filament to hit the tungsten target by application of a high voltage to the tube. The electron speed can exceed half the speed of light before being rapidly decelerated in the target. So that's simple. Push the rotor or the button. इसमें एक rotor होगा, ठीक है, वही rotor जो पीछे देखा था हमने, रोटेटिंग उसका एक बटन होगा, उसको आप ऑन करेंगे, इससे फिलामेंट चार्ज होगा और थर्मियोनिक एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगी। और जब उसकी एमिशन होगी ये फिलामेंट से, इसने एक स्पॉट पे, रोटेटिंग एनोड के किसी एक स्पॉट पे जाकर टारगेट कर दिया, और उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सरे फोटॉन प्रोड्यूस हुए, इसकी रोटेशन शुरू हो गई। X-ray characteristics. Highly penetrating invisible rays, electrically neutral, travel in straight lines, travel with the speed of light in vacuum. 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड हो सकता है, या फिर 1,86,400 miles per second. Ionize matter by removing orbital electrons. जहाँ भी एक्सरे जाएंगे वहां से उस किसी भी मैटर से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे और आयनाइजेशन करेंगी, और फ्लोरेसेंस इंड्यूस करती है, स्क्रीन पे ग्लो आता है जब भी फोटॉन्स किसी फिल्म को, स्क्रीन को जाके स्ट्राइक करती है। Cannot be focused by lenses. पेनिट्रेटिंग डिस्टेंसेस है, एक आपकी अल्फा रेज होती है, बीटा, गामा एंड एक्स। अल्फा रेज सिर्फ पेपर को पेनिट्रेट करेंगी, बीटा रेज प्लास्टिक को कर सकती हैं, गामा रेज और एक्स रेज लेड को कर सकती हैं, बट नॉट द कॉन्क्रीट। ओके, दिस इज हाउ यूजुअली एक्स-रेज जो है वो लिए जाते हैं। मैंने आपको बताया था एक पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू होता है, दिस इज द कॉमन व्यू ड्यूरिंग एन एक्स-रे। पोस्टीरियर एंटीरियर कैसे है ये, इसकी जो पोस्टीरियर साइड है दैट इज
फेसिंग द एक्सरे मशीन के जहाँ से आपके फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं, और इसकी एंटीरियर साइड जो है वो पेशेंट की स्क्रीन के सामने है। सो स्क्रीन और पेशेंट का आपने एक्सरे किसका लेना है, चेस्ट एक्सरे ले रहे हैं आप, इसमें पिक्चर आपको शो हुई है, इसमें आपके लंग्स होंगे और हार्ट होगा। सो दे आर मोर क्लोज टू दिस जहाँ पे उसकी एक्चुअली इमेज बना था। सो दिस इज अ पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। इट प्रोड्यूसेस स्टैटिक इमेजेस। अल्ट्रासाउंड के अंदर जो है वो आपको मूविंग इमेजेस नजर आते हैं, और रेडियोग्राफी में स्टैटिक। शील्डिंग ये होता है कि टू प्रोटेक्ट द पेशेंट एंड टू प्रोटेक्ट द पर्सन जो एक्सरेज करा रहे हैं, उसमें सारे मेडिकल कॉप्स, टेक्नीशियंस एंड डॉक्टर्स, वो लेड एप्रन होता है जो यहाँ इन्होंने पहना हुआ है, सो दैट वो हार्मफुल ना हो। ओके, थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक एक्सरेज। जो थेराप्यूटिक एक्सरे प्रोडक्शन होती है किसी डिजीज की थेरेपी के लिए, अगर आपको एक्सरेज चाहिए लाइक कीमोथेरेपी वगैरह में, तो उसमें आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यूज करते हैं। इट हैज़ अ हायर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फोटॉन, तो फोटॉन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है इसके अंदर। इन द डायग्नोस्टिक रेंज जो कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जिसमें आपने डायग्नोज करना है, यूजुअली जो एक्सरेज होते हैं जिसपे आप चेंजेस देख रहे होते हैं, पैथोलॉजीज देखते हैं, there is more conversion of the electron to heat. So इसमें photons इतने नहीं बन रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन हीट में डिसिपेट हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स converting to heat is 99% and only 1% of electrons been converted to photons. और वही photons चाहे वो बॉडी के थ्रू पास हो रहे होते हैं। ओके, attenuation क्या होती है? Attenuation is reduction in the number of photons. It is a reduction in the number of photons as they pass through the matter. Attenuation कैसे होगी? Either it is absorbed by the matter they pass through, like अगर bone थी या fat थी, उसने absorb कर दी, या फिर वो scatter हो गई। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था रेडियोग्राफ में। अब रेडियो डेंसिटी क्या होती है? इट इज a representation of the relative tissue density based on appearance of the tone of the tissue, white, gray or black. So air appears black, often seen in structures such as lungs, bowels and trachea. Fat आपको dark gray नजर आती है, like thicker adipose tissues में muscle, tendon, organ tissue neutral या mid gray नजर आएंगे। Bone आपको white नजर आती है जो cortical bone होती है, और जो cancellous bone होती है वो light gray होती है, light gray to whitish लग रही होती है। और कैंसरस बोन का मैंने आपको ये बताया था कि जो लॉन्ग बोन होती हैं उसकी एंड्स पे होती हैं, और जो वर्टिब्रा होती है उसके सेंटर में होती है। कॉर्टिकल बोन होती है जो उसको लाइन कर रही होती है मार्जिन्स पे। कंट्रास्ट मीडिया हमेशा वाइट नजर आएगा, और कोई भी मेटल होगा, ज्वेलरी, डेंटल फिलिंग, ऑर्थोपेडिक हार्डवेयर, और कोई भी फॉरेन बॉडी है, बुलेट है, वो आपको ब्राइट वाइट नजर आएगी। तो हमने ये कहा था कि जो बोन है वो आपको व्हाइटिश नजर आती है, इसमें ये कॉर्टिकल बोन है, ठीक है, जो आपको ज्यादा ब्राइट नजर आ रही है, और ये आपको लाइटिश ग्रे जो है वो कैंसरस बोन है। और यहाँ पे आपका सारा ये सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, और ये थोड़ा ज्यादा डार्क एरिया दैट इज फैट, और एयर बिल्कुल ब्लैक दिख रही है। तो आप एक्सरे में आप चीजें नोट करते हैं, एक आप देखेंगे अलाइनमेंट। इट इज द बोन इन गुड जनरल अलाइनमेंट है, उसकी दोनों बोन्स अलाइंड है, क्योंकि अगर मिस अलाइनमेंट है इसका मतलब कोई पैथोलॉजी है। जनरल बोन डेंसिटी आप देखते हैं उसके अंदर, समटाइम डेंसिटी नॉर्मल से ज्यादा लग रही होती है, इट मीन्स कि वहाँ कोई पैथोलॉजी चल रही है। कार्टिलेज, सफिशिएंट कार्टिलेज स्पेस है या नहीं, एंड सम अदर स्टफ लाइक आपने मसल्स और टेंडन्स देख लिए, फैट पैड्स देख लिए, लाइंस देख ली, जॉइंट कैप्सूल्स एंड मिसलेनियस सॉफ्ट टिश्यू फाइंडिंग्स, या कोई फॉरेन बॉडी लाइक बुलेट्स, ये सारी चीजें आप एक्सरे पे नोट कर रहे होते हैं। जैसे ये अलाइनमेंट है, अब ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, दोनों प्यूबिक बोन्स है, ये सुपीरियर प्यूबिक रेमाए है, और ये दोनों अलाइंड है, आपको इसमें कोई डिस्प्रोपोर्शनेट पीस नजर नहीं आ रही, सो दे आर अलाइंड। But this is something foreign in this bone, कोई rod डला हुआ है जो आपको ऐसे ही नजर आ रहा है, white bright white, it's something like metal implant.
ये सारी जो आपको नजर आ रही है, दिस इज द फैट, और ये आपकी बोन फिर हो गई है। एल्बो जॉइंट शो किया हुआ है। ह्यूमरस है, इसकी शाफ्ट है, इसके साथ ये कॉर्टिकल बोन है जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड इसमें अब आप देखेंगे तो दिस इज एन इंटीरियर फ्लैट पैड जो थोड़ा सा डार्क है, और यहाँ पे दिस इज द कैपिटलम एंड दिस वन इज द कोरोनॉइड प्रोसेस। ये वही एनाटॉमी है जो मैंने पहले भी बताई थी। This is the trochlear knot and olecranon process of the ulna. ये आपका रेडियस का हेड और नेक, और ये रेडियल फिब्रोसिटी आ गई। एंड दिस वन इज द ulna. ये जो है आपका नेक का लैटरल व्यू है, ठीक है, ये भी लैटरल व्यू था। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको ये सारे आपको सर्वाइकल वर्टिब्रे नजर आ रहे हैं, और ये आपको these are aligned in a shape, ठीक है, वो एक नॉर्मल कर्व बनी हुई है जो बनती है with their bodies and their transverse processes. This is another example of a shoulder joint. इसमें भी आपको anatomy और alignment नजर आ रही होगी bones की। ये आपकी clavicle पड़ी हुई है। This is the acromion process of the scapular bone and the glenoid fossa, जिसके अंदर किसने फिट होना था, humeral head में। This is your humerus. अगर यहाँ पे कोई डिसलोकेशन होती और ह्यूमरस का हेड इधर कहीं पड़ा होता, सो दैट वुड बी डिस्प्रोपोर्शनेट एंड यू कुड रिकॉग्नाइज कि यहाँ डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट है। और ये उन्होंने कुछ डॉटेड लाइन में आपको दिखाया हुआ है कि दिस इज एक्चुअली स्कैपुला। एक्स-रे स्टडी नेम्ड फॉर द डायरेक्शन द बीम ट्रेवल, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, जिसमें मैंने आपको यही कहा था कि अगर एंटीरियरली पेशेंट बीम के आगे खड़ा हो जाएगा तो वो एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू होगा, और पोस्टीरियर एंटीरियर क्या होगा अगर वो बीम के आगे पोस्टीरियरली खड़ा हुआ है। और lateral orient film as if you were facing the patient, his or her left will be on your right। तो पेशेंट का जो लेफ्ट साइड आपको एक्सरे पे नजर आ रही होगी, वो आपकी राइट साइड पे होगी, मतलब जो आपका राइट हैंड ना बेसिकली दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट। ये भी मैंने आपको पहले बताया था। ओके, दिस इज द लैटरल व्यू ऑफ द नेक अगेन। इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो विजिबल हो रहे हैं। ऊपर जो स्टार्ट करते हैं, दिस इज ऑक्सीपिट, ठीक है, बोन है, ऑक्सीपिटल कंडाइल्स है यहाँ पे, और ये आपकी आ गई है C1। C1 पे ये इंटीरियर आर्च है। दिस इज द dense body of the C1, this one is the posterior arch। ठीक है, अब C2, C3, C4, C5, C6, C7, ठीक है जी। इसमें ये सारी क्या होगी, C2 की बॉडी है, C1 की है, C3 की ये बॉडी है इसकी, और ये जो सुपीरियर सरफेस है, मैं C3 की सुपीरियर सरफेस दिखा रही हूँ, दिस इज दी सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट। ये C4 का सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट है। अब इंफीरियर जो सरफेस होगी दैट विल बी इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट, और वो C4 का देखें, दिस इज द इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट, और ये है जी C5, इसका इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट। अब इन वर्टिब्रा के दरमियान क्या होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो आपको जरा डार्क ग्रे सी नजर आ रही है। So these are intervertebral disc। और ये आपके फैसेट्स हो गए, और ये जो पीछे प्रोजेक्ट कर रहे हैं लैटरल व्यू पे आपको स्पाइनस प्रोसेसेस नजर आते हैं, और जहाँ से बॉडी और फैसेट्स के दरमियान ये जो नैरोइंग पार्ट होता है इसको हम पेडिकल कहते हैं। ये सारी एनाटॉमी है जो आपको एक्सरे पे नजर आ रही है। ठीक है जी, ये आपकी सारी सर्वाइकल वर्टिब्रा C1, C2, C3 इनकी सारी बॉडीज हैं, ठीक है, और इनके दरमियान में क्या इंटरवर्टिब्रल डिस्क पड़ी हुई है, इनके सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट एंड दिस इज द इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट, और ये जो पीछे प्रोजेक्ट कर रहे हैं लैटरल व्यू, दीज आर द स्पाइनस प्रोसेसेस। इसने ओब्लीक व्यू दिखाया हुआ है। ओब्लीक व्यू के अंदर जो है वो आपको C2, C3 बिटवीन द वर्टिब्रा जो फोरामिना होते हैं, ओपनिंग जो होती है वो मेंशन की हुई है, ठीक है।
This is between C2, C3, C3 C4 के दरमियान ओपनिंग है और C4 और C5 के दरमियान है और ये आपको oblique व्यू में नजर आती है, नॉट ऑन द lateral व्यू। तो सब एक्सरे के एक व्यू के बजाय मल्टीपल व्यूज को प्रेफर करते हैं, जैसे यूजली पोस्टीरियर एंटीरियर है तो साथ lateral व्यू करवाते हैं। This is the anterior posterior view of the neck again। ये C3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। This is the body of the C3। अब ये जो C4, C5, C6 और this is C6 to C7 और फिर आपका C3, C4, C5, C6 और T1 और फिर नीचे आ गई है फर्स्ट रिब। इसमें ये जो आपको सेंटर पे नजर आ रहा है, जो आपको लैटरल व्यू था उसमें आपको इस तरह प्रोजेक्शन नजर आ रही थी, लेकिन क्योंकि ये एंटीरो पोस्टीरियर व्यू है वो प्रोजेक्शन नहीं आपको नजर आएगी, वो आपको इस तरह से नजर आएगा। दीज आर द स्पाइनस प्रोसेसेस और ये इसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं साइड पे, और जो पीछे प्रोजेक्ट करते हैं वो स्पाइनस प्रोसेसेस हैं। ओके, लंबर स्पाइन का ये है जी ओब्लीक व्यू। लंबर स्पाइन के ऊपर जो उसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके लिए एक एब्रिविएशन होता है स्कॉटी डॉग, ठीक है। उसमें आपने इसको याद रखना होता है कि ये एक शेप होती है इसके थ्रू हम उनकी सर्फेसेस को याद रखते हैं। इसे देखते हैं, ये सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फेसेट है, दिस वन जो नीचे देखें आप, ये दिस इज द सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फेसेट। उसके बाद जो साइड पे प्रोजेक्ट कर रहा होता है वो आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, ये वाला, दिस इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस। और ये जो है वो आपका पेडिकल होता है, इट इज अ कनेक्टिंग पॉइंट। और इसी तरह हम नीचे देखेंगे तो ये क्या है, पेडिकल। और ये जो बॉडी टाइप शेप बनी हुई है इसकी, दिस इज द लैमिना ऑफ द लंबर स्पाइन। और बिल्कुल नीचे ये आपका आ जाएगा इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग फेसेट। सो दिस इज अ डॉग शेप थिंग। इसके ऊपर आपने कहना है कि ये सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फेसेट था, ये इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग फेसेट था, और इधर से साइड पे जो प्रोजेक्ट करता है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, और एक जो नैरो पार्ट होता है दैट इज द पेडिकल एंड दिस वन इज द लैमिना ऑफ द लंबर स्पाइन। ये वही चीज है जिसे एब्रीवेट करके दिखाई हुई है, सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फेसेट, दिस इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस, पेडिकल, ये लैमिना होगा, और नीचे वाला क्या होगा, inferior articulating facet। Okay, what is this? एक फॉरेन बॉडी है, बेसिकली इसकी शेप से पता चलता है कि ये बुलेट है जो आपके इस पेशेंट के चेस्ट में प्रेजेंट है, बट ये उसको क्रॉस करके बाहर निगेट से प्रेजेंट इन द चेस्ट। और ये आपने लैटरल व्यू में देखा, that was close to the exit। Bullet can be in any of the places anterior to posterior at same level। स्पाइनल कॉर्ड पे किसी भी लेवल पे हो सकती है, ठीक है। above the vertebra हो सकती है, फोरामिना में हो सकती है, उसकी बॉडी में प्रेजेंट हो सकती है, ट्रेकिया पे प्रेजेंट हो सकती है, सुपीरियर वेना केवा एंड एयोर्टा। और वो हमेशा आपको ब्राइट वाइट नजर आएगी और अपनी शेप से पता चलेगा कि it's a bullet। So a radiograph is a two-dimensional representation. Therefore, one view is no view. Two views are needed, ideally at 90 degrees to one another for a proper 3D-like interpretation. Like posterior anterior view along with the lateral view is common practice. So to sum it up, it is relatively much more important for a physical therapist to recognize the indication for diagnostic imaging कि इसकी हमने एक्सरे सीटी कुछ करवाना भी है या नहीं, select the most appropriate imaging study and to image the appropriate area when it is to interpret the image. So that was all about the radiography.